Assalamu alaikum and warm welcome back as we're back with the chase. 163 is what Master Leon Ompora require to enter the semi-finals of the tournament. 3 teams already in the semi-final. The winner of this one will join other 3, and let us see who's gonna crack this one here. Who will break free and get into the club of other 3 members to join them to become the 4th one. And let us see, will it be Ompora or Elegant Strikers? Amir Aziz missed out today. He is not playing for this side, and so is the case with Wasim Raza. Legendary Raza and Amir Aziz, 2 state players missed out, but Fazil Rashid, the brother of Gabbar Rashid, the state player Fazil Rashid, wicketkeeper batter for state team, is part of that side. Scored a boundary of the first ball, second ball he was caught at short cover, soft dismissal. And we're about to start, about to begin here at the center. 162 for 6 is what Elegant Strikers managed after 20, and in response to that, here are the 2 openers to reply and to respond. How they will respond, let's find it out. What kind of response we are in, only the time will tell us how these 2 will adjust and adapt to the conditions here. Nazir, 163 is the target. At one stage it looked like 200 or beyond that, but in the end eventually they finish at 162. स्वागत करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। 163 रनों का लक्ष्य, और वो जो बात आपने की कि एक समय पे ऐसा लग रहा था 180-190 का लक्ष्य होगा, लेकिन वापसी बहुत बढ़िया रही वहाँ मास्टर्स 11 ओमपुरा के गेंदबाजों की, और एलिगेंट स्ट्राइकर्स को रोक लिया 162 तक। 163 रनों का लक्ष्य उनके सामने। हालांकि इस विकेट पे अगर बात करें तो अच्छा लक्ष्य है, लेकिन अब बल्लेबाजी किस प्रकार की रहेगी ओमपुरा की, ये देखने वाली बात होगी। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और प्रारंभ होने जा रही है दूसरी पारी। वो जो लक्ष्य 20 ओवर में 120 निर्धारित गेंदें आपके पास रहेंगी और 163 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और चौथी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बनने का एक अवसर रहेगा। क्या या चौथी टीम होगी एलिगेंट स्ट्राइकर्स या फिर मास्टर्स 11 ओमपुरा, ये देखना होगा। दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है और 2 प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। 20 ओवर, जैसा कि आप तक सोचना स्पष्ट हो चुकी है, 20 ओवर में 163 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 3 टीमें जो पहले से सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें पहली टीम वैली फ्रेश कोल्ड चेन, दूसरी टीम एमएलए जिमखाना, और आज के पहले क्वार्टर फाइनल में जीत अर्जित की थी बटवारा स्पोर्ट्स क्लब ने। उन्होंने कश्मीर टाइगर श्रीनगर की टीम को हराया था और वो तीसरी टीम बनी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। यहां से चौथी टीम का निर्णय आएगा। कल दोनों सेमीफाइनल मुकाबले होंगे और उसके बाद फिर 28 नवंबर को अंतिम फाइनल मुकाबला। फिलहाल दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है और ऐसे में 2 बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। The opening pair in the middle for Master 11 Ompora. Zaidar may not be able, maybe or may not. Well, maybe not, let us see. As I had a chat with Zaid for a while, and if team required him, he may walk in. That too when they have no other option. But at this very crucial juncture, 163 is the target, and here it is the chase time in the middle. The 2 batters are getting ready. Bowler from other end is also on top of his bowling mark. The 2 umpires in the middle, and umpire throat out, let's play. The wicketkeeper is bit lazy. All set, and he is yet to get ready. Finally, we are underway. Here is Furqan Butt with the first ball of the match, of the chase, and it's, take a look, who's this lad? It's Feroz Ahmed. He batted like a champion other day here. That was their first game on this surface when he batted for 45 or around that. But here comes the first maximum of inning number 2. That 6 brought to you by Just Bukhara, and it's 6 for none. Feroz off the mark. First ball, and look at that shot, towering it is. And oh, we lost the ball.
in search of a ball. There are two men. One is the ball boy, the other one is the player there. Finally, he finds it out. He's back on the field. So is the ball. 6 for none. शुरुआत छक्के से जस्ट बोकारा छक्का फेरोज के बल्ले से। हालांकि फेरोज और बासित पॉल यही प्रारंभिक जोड़ी है मास्टर्स 11 ओमपोरा के लिए। फुरकान ने गेंदबाजी प्रारंभ की है। पहली गेंद पर छक्का 6 मास्टर्स 11 ओमपोरा बगैर नुकसान के। अगली गेंद फेरोज के लिए और इस बार ऑन साइड में, हालांकि स्क्वायर लेग की ओर खेले। उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, जब तक गेंद को फील्ड कर लेते। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ मास्टर्स 11 ओमपोरा 7 बगैर नुकसान के। 163 रन चाहिए, 7 रन बने हैं। पहले ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ हुई है। फुरकान है गेंदबाज, फेरोज और बासित पॉल, ये है प्रारंभिक जोड़ी मास्टर्स 11 द्वारा। 7 without loss in over number 1. Imtiaz Malla beyond the boundary line, having words with Adil Young, talented bowler and batter, all-rounder to be precise. He's giving him pep talk, how to bowl under certain circumstances, how to bat when your team need you badly. Here is Furqan again to Basit Paul, and Paul could only manage it to short cover. No run there. Score man static. 7 without loss. Fazil Rashid on the field. He's in the field and he's busy at the moment. He's having a word with his bowler time and again. Now man drops down to the cover point boundary. Third man comes in. Maybe he's gonna go with the short ball wide of the off. He will lure him into that cut shot. Let's see. Here is Furqan again, but he works it away down to the square of the wicket. Fumble there. That's 4. Unable to stop the ball. It kicked up the outfield and it was quick 2, and that runs away to the fence for 4. There is addition in score. It's into the double figures. 11 for the loss of no wicket. 11 रन बने हैं बगैर नुकसान के। फेरोज और बासित पॉल की जोड़ी बीच मैदान में। बासित 4 पे 2 गेंद उससे और फेरोज 7 पे हैं 11। अगली गेंद लेकर के फुरकान चले। इस बार किनारा और चौका मिलेगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट वॉकर और चौका मिलता हुआ। रन संख्या पहुंच गई 15 पे पहले ओवर में बगैर नुकसान के मास्टर्स 11 ओमपोरा। Ajishwan flies. Interesting. Third man was there, and the two batters were going straight down the ground through cover area. Once they brought in the third man, and he bowled wide of the off with no slip in place. He goes hard at it. Ajishwan flies to third man, and still he's bowling with the slip cordon up, and it's gully up inside third. No third man. Batter line this time. Batter line. Bat and pat close together, plays it back along the track. No run. 15 of the first over. पहला ओवर समाप्त। मास्टर्स 11 ओमपोरा ने 15 रन बनाए बगैर नुकसान के। 163 रन बनाने हैं और अभी भी 148 रनों की आवश्यकता। अच्छी शुरुआत पहले ओवर से मास्टर्स 11 ओमपोरा के लिए। अगर बल्लेबाजी की बात करें, बासित 8 पे और 7 बनाए हैं फेरोज ने। पहले ओवर में फुरकान के आए 15। एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम 1 विकेट की तलाश में और यहाँ विस्फोट करना होगा प्रारंभ से ही। और पहले 6 ओवर्स में ये जो पावर प्ले का खेल रहेगा, उस पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का यहाँ प्रयास रहेगा मास्टर्स 11 ओमपोरा द्वारा। और एक अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा शुरुआत में। दबाव बनाना होगा गेंदबाजों पर। 15 for the loss of no wicket after 1. After 1 they are 15 Basit 8, Feroz 7. Two major contributors who contributed 8-7, and that makes it 15 of the first over. Is it Fazil Rashid to bowl? Yes, he's gonna bowl now. This is over number 2 we are in. 15 without loss after 1. This is second over, which is about to start, and on strike will be Feroz Ahmed. No third man again. It's up inside 30 yard. Here he goes, and Feroz launches. Will it go the distance? It goes all the way for 6. First ball, and Feroz middled again. He welcomed Furqan with a 6, and he says, "Thank you very much, Alan Wasala, Mr. Fazil Rashid. Welcome to the crease with a magnanimous over long on again." And that 6 brought to you by Just Bukhara. 21 it is for the loss of no wicket in over number 2. Target is 163. Feroz in a right saves him, and Furqan is there at short fine.
He didn't shy because there wasn't anyone backing up. That's his gut feeling. Otherwise they were one or two, but he was unable to find them in a position, and he felt that they're not ready to back up. Feroz goes for the cut on the bounce. Fumble on the offside there, but to no avail as Feroz is not looking forward for a single. It's 21 without loss. 21 बगैर नुकसान के 1.3 ओवर की गेंदबाजी फाजिल रशीद, जो कि बल्लेबाजी से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मात्र 4 रन तक उनकी पारी सीमित रही थी। और अब जब गेंदबाजी में अवसर मिला है तो देखना होगा वो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे इस बार धीमी गति की गेंद। हालांकि वहां चकमा दिया फेरोज को और गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, लक्ष्य आपके सामने 163 का, और 21 रन अभी तक बना लिए हैं। 142 रन अभी भी बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए एलिगेंट स्ट्राइकर्स के विरुद्ध मास्टर्स 11 ओमपुरा को। अंतिम और आखिरी ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी। इस बार ऑफ स्टंप पर स्टंप्स को कवर किया, ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि पीछे खिलाड़ी है और जब तक वे गेंद को फील्ड करते रन बनने की संभावना तो थी नहीं फेरोज और बासित को। अच्छी रणनीति फेरोज की, क्योंकि जानते हैं ज्यादा अतिरिक्त जोखिम उठाने नहीं है। यहाँ आवश्यकता है विकेट को सुरक्षित रखने की, यहाँ आवश्यकता है एक बेहतर पारी खेलने की अपनी टीम मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए। फेरोज सामने है और फाजिल रशीद गेंदबाजी कर रहे हैं। 21 आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, और इस बार फिर अच्छी गेंद स्टंप्स की और वापस खेला बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हुआ, 6 रन मात्र इस ओवर से, 2 ओवर पूरे और 2 ओवर में 21 बगैर नुकसान। Only 6 then all 5 dots, and he tested him with different line and length. He took pace off the ball, he cramped him for space, and Feroz, he's a different kind of a batter. He used 8 balls for his 13, and his partner is on to 8 of 4 balls. He's batting with a strike rate of 200, and Feroz, he's batting with a strike rate of around 150, 160, around that. Music is going on in the background. It's 21 without loss. They're still 142 runs behind, 102 balls remaining. Now 160 looks still chaseable, but anything around 200 or more than that makes it a bit hectic for teams, for cricketers, makes it look tough. But at this very crucial juncture, after 2 overs, score is 21. They are still 142 runs behind, but got to admire their bowlers who mixed it up in middle overs and pulled things back in time. Here is Aqib Hamid to bowl with bat. He has not been that much effective throughout the tournament, but with ball he need to produce a magic here. As he has done that, Basit Paul departs. Ball holding up a bit, he was early into the shot, and then there was a bounce also on offer, still hitting the top of bails and getting his man here. It's 21 for 1 now. पहला विकेट बासित पॉल के रूप में आउट होकर पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए बासित पॉल, हालांकि फेरोज ना पाते नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। और आकिब हमीद का परिवर्तन जब किया गया गेंदबाजी में, तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल। फुरकान के पहले ओवर में 21 आए, दूसरे ओवर में फाजिल रशीद के 6 रन आए, और तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आकिब हमीद और सफलता मिल गई। यहाँ मास्टर्स 11 ओमपुरा के बाद एलिगेंट स्ट्राइकर्स को 1 विकेट 21 पे गवाया। 2.2 ओवर की गेंदबाजी और अभी भी 142 रन दूर है नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर। और क्या लाला का इस्तेमाल किया गया है या फिर किसी अन्य गेंद बल्लेबाज का? लाला आए नए बल्लेबाज जो कि विकेट कीपर बैठ रहे हैं जहां तक मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम का सवाल है। लेकिन यहाँ लाला को कुछ बेहतर करना होगा, कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी, और वो पारियां दोहरानी होगी जो उन्होंने कश्मीर कप में दोहराई थी, और उस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। और वहीं पे एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम एक और विकेट की तलाश में। 21 पे 1 अगली गेंद आकिब की लाला के लिए, और लाला ने आते ही गेंद को निकाला। हालांकि मिड ऑफ के खिलाड़ी शानदार क्षेत्र मुनीब मुनाफ का 1 रन तो पूरा कर लिया। फेरोज सामने रहेंगे, रन संख्या 22, 1 विकेट के नुकसान पे 141 अभी भी दूर है इस मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। 22 for 1 after 2.3. This over number 3 in progress, and asking really just 8.06 an over. And Lala goes cross the. It is Feroz goes cross the line, connectors. That's 4. But Fazil Rashid
barring that 6. He tested him. Oh, that isn't a boundary. We'll have to wait and watch. What is this? This is on. I think he stopped it in the end. Just a single, and scorer also need to change it. And it's just a single. Ball stopped on its own. All of a sudden it stopped. So will be given as a single, a solitary run to Feroz and company. So that run means 23 for 1. And here is Akib again. 5 balls, 2 runs and a wicket. Ajishwan goes down towards third man, fielder in pursuit, but ball is running away. Ball is running away into the side screen. That's for Ajishwan of the bat of Lala. And that will spoil it little bit. Not that much. Over comes to an end. After 3 there are 27 for the loss of 1. Scoring at the rate of 9 and over. The asking rate is just 8 and over. And they're scoring at the rate of 9 and over. 3 ओवर में 27 एक विकेट पे ये किनारा और चौका मिला था। हालांकि थर्ड बैंड क्षेत्र पे खिलाड़ी ने हर संभव प्रयास किया लेकिन विकेट तक नहीं पहुंच पाए। 27 पे 3 ओवर पूरे हो चुके हैं। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बना रहे हैं। आकिब हमीद की इस ओवर से 6 रन आए और 1 विकेट उन्हें मिला बासित पॉल का। पारी का ये कुल मिलाकर चौथा ओवर और फाजिल रशीद का ये दूसरा ओवर कोटे का। वे अब गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने रहेंगे बल्लेबाज लाला और उनके साथ फेरोज। हालांकि फेरोज सामने है लाला नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे 3 में 27। चौथे ओवर की शुरुआत, अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 162 का लक्ष्य। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नडीपुरा श्रीनगर। पहली गेंद फाजिल के इस बार जगह मिल गई और देखिए नतीजा, मैदान से बाहर जस्ट बोकारो छक्का पहली गेंद पर। और इससे पूर्व अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर उन्हें छक्का लगाया था फेरोज ने, और इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का, तो कुल रन संख्या 33 पे 1। Short ball outside of predictable line and he takes him on. But let us see, are we in for another testing over now? First ball, the other over, first ball gone for 6. Then Fazil tested him with remaining 5 balls and he was tested exactly, and batter, he irritated batter to be precise in that over, and Feroz somehow survived scare in that over after that 6. But here is the fresh over from Fazil and he's again welcomed with a 6, and just Bokhara maximum 33 for 1. Now they are 130 runs behind. 33 पे 1 और अब 130 की आवश्यकता। हालांकि लाला और फेरोज ने इरादे आते ही स्पष्ट कर दिए हैं। कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, विस्फोटक अंदाज अपनाया हुआ है। 20 पे नाबाद है 10 गेंदों से और उनके साथ लाला ने 5 बनाए हैं। कुल 3.1 ओवर में 33 बने। फाजिल रशीद की बात करें तो 12 रन उन्होंने दिए हैं 1.1 ओवर की गेंदबाजी में। ऑफ स्टंप पर यह गेंद और उसको खेला जरूर, बड़े आत्मविश्वास के साथ मिडिल ऑफ द बैट से ऑफ साइड में रन बनने की संभावना थी नहीं। डॉट गेंद के साथ संतुष्ट फेरोज। 33 पे 1, 3.2 ओवर की गेंदबाजी। पिछले ओवर के पहले गेंद पर छक्का 5 डॉट और इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी डॉट, तीसरी गेंद फाजिल रशीद की। आगे है फेरोज के लिए गेंद, एक बार फिर ये डॉट हो गए, ये दूसरी डॉट गेंद। और क्या कहानी दोहरा पाएंगे इस ओवर में भी। रन संख्या 33 1 विकेट के नुकसान पे। फेरोज जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज है, पर आप ज्यादा देर तक उनको शांत नहीं रख सकते क्योंकि जिस प्रकार के वो बल्लेबाज हैं वो आक्रामक शैली के बल्लेबाज और आक्रामकता उनकी बल्लेबाजी दिखाई देती है। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बार थी ये गेंद, हालांकि गेंद को निकाला सीमा रेखा की और अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। 37 पे 1, 3.4 ओवर की गेंदबाजी। फेरोज लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए, और शुरुआत भी बढ़िया चाहिए क्योंकि 1 विकेट जरूर मिला है वहां पर। वो विकेट आकिब हमीद को मिला था और फाजिल रशीद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में 37 रन मास्टर्स 11 ओम पर के 7.71 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। ये चौथा ओवर 2 गेंदों का आना बाकी है। 10 रन इस ओवर से आ चुके हैं अभी तक फाजिल रशीद के इस ओवर से। 4 गेंदे और 4 गेंदों में 1 छक्का 1 चौका और 2 डॉट गेंदे। ये 5वीं गेंद इस ओवर की। 37 फेरोज सामने है 24 पे। अगली गेंद फाजिल की और इस बार अच्छी गेंद थी। दायां के बल्लेबाज के लिए अंदर आते हुए अपील की जा रही है लेकिन स्वीकार नहीं किया अंपायर ने। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। 37 पे 1, 3.5 के बाद।
37 for 1 this over, 6, 4 and other dots. 3 dots, 5 balls, 10 runs coming. And Fazal bowled 2 bad deliveries. Both were punished in style. If he bowled good delivery, I don't think Feroz will be able to rotate strike. Not talking of big shots. Next one, he comes down the wicket this time. There is long on in place this time. Momin is there. Feroz wanted second. Just a single, 38 for 1 after 4 overs. And now the current rate comes down to 4 8s are 32, 4 9s are 36, and they're still going 9, more than 9 and over. 9.50 and over, 9.5 and over. And the asking rate is 7.81. It comes below 8 now, but we are within the power play. Who knows how things will change after the completion of power play. Still 2 overs remaining in power play. Once the captain will design the field outside the 30-yard. At this very crucial juncture, barring 2 all are bound to stay inwards inside 30-yard circle. But once captain will have the freedom of designing the field beyond that circle, then it's going to be testing time, because we saw that elegant strikers, they were going elegant. They were going fantastic with the bat. But in the middle overs, things were pulled back by the bowling unit. So here we are again witnessing a crackerjack of a start, a quick start, a brisk start in power play, but who knows what's gonna come our way and the batting side way after 6th over. Fresho first ball, no run there, and Feroz wants some over pitch deliveries, short of length deliveries, where he can free his arms, and he's gonna feed on those deliveries. Will he be feed? No, again he sends in a lower trajectory ball, which stays low and turning outwards. It isn't an over pitch ball. It isn't that kind of a delivery you call that he's feeding you with the freebies. He's not gonna feed him short ball. And oh, this one he connects. This time he feeds him, and he goes with the cross hit, goes for the sweep, and that ball flies over scare leg. I was just talking about the bowler will try to keep him away from that. He won't feed him, but now he has produced one that was in his zone, and he goes after that one just to Bukhara maximum coming. It's 44 for 1. 44 पे 1 4.3 ओवर की गेंदबाजी, फेरोज 31 पे और लाला 5 पे 3 गेंदों से, और कुल रन संख्या 44 तक पहुंच चुके हैं 4.3 ओवर की गेंदबाजी में। हालांकि अभी भी 119 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा संघर्षपूर्ण और आकर्षक ये मुकाबला हो सकता है, और खूबसूरत और बेहतर मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, क्योंकि अगर इस मुकाबले की बात करें, इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें, तो पहली पारी में 162 रन बनाए थे एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने, और 163 रन बनाने हैं यहाँ मास्टर्स 11 ओमपारा की टीम को। 44 पे 1 आकिब हमीद गेंदबाजी कर रहे हैं। अरे क्या शानदार बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है, खासकर फेरोज जिस प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं बल्लेबाजों पर, और पूरी तरह से विस्फोटक अंदाज उन्होंने अपनाया है, क्योंकि इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है। और आपको 120 गेंदों से 163 रन बनाने हैं, तो ऐसे में 44 बन चुके हैं 4.3 ओवर की गेंदबाजी में। ये 5वां ओवर, 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी, और उसके बाद 15 ओवर, यानी कि कुल मिलाकर 93 गेंदों से 119 रन। तो लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर गेंदों और रनों के बीच की बात करें हम, लेकिन क्रिकेट महान अनुशंसाओं का खेल है, कुछ भी संभव है इस मुकाबले में। और यहाँ से दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण यह मुकाबला है, क्योंकि जीत करके जाने वाली टीम सेमीफाइनल में और हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट से बाहर। तो कल दोनों सेमीफाइनल मुकाबले यहाँ खेले जाने हैं, और दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों का लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा। और 28 नवंबर को इस टूर्नामेंट का, यानी कि सीआरपीएफ कप के 2nd एडिशन का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, वो भी लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा। फिलहाल 44 पे 4.3 के बाद, लेकिन अच्छी है अभी तक बल्लेबाजी देखने को मिली है फेरोज, और सहयोग किया है लाला ने। The pair of Lala and Feroz. Lala on to 5 3 balls, but Feroz moves to 31 of 18 balls, because the dot percentage is also the concern for Lala. He's on to 31 out of 31. It's by virtue of some big shots and big hits. I think 2 or 3 sixes out of 31. That 31 knock is powered by 3 magnanimous hits, and he's just going with 6s and 4s, and he didn't rely on singles. That is the concern for Lala,
and he need to understand that he need to break free and mix it up and rotate strike each and every ball. If you hit a 6 on ball 1, second ball, don't chew it like chewing gum, and don't consume it like a dot ball. At least to rotate strike, that make it 7 of 2. Otherwise, we have seen that he scored 6 of the Fazil Rashid's first ball, then chewed 5 dots on the trot. That is the concern. Well, the dot percentage, it should be less or lesser. But talking of this lad, he has played too many dot balls, but he's now trying to mix it up and balance it with big shots here. Now it looks healthy at the moment, 31 of 18. But the one who will analyze his knock, he will see that, he will find out just 2 or 3 sixes making it to 31. Then other 15 or 12 balls are dots. That's the concern. So he need to mix it up. और बिल्कुल एक महत्वपूर्ण विषय ये है उनकी बल्लेबाजी में, क्योंकि ज़्यादा डॉट गेंदें उन्होंने खेली है। हालांकि भरपाई करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर प्रदर्शन, अगर आप सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ लाभ मिला चौके से, जस्ट मुखारा चौका एक बार फिर फेरोज का मिलता हुआ, और इस चौके के साथ 48 तक रन संख्या पहुंच चुके हैं। और जहाँ बिल्कुल अगर नियुक्त समय की बात करें, हालांकि वो 4:30 का नियुक्त समय है, और क्या उसके अंदर इस मुकाबले को समाप्त किया जाएगा, और आशा रहेगी कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को समाप्त किया जाए। और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें, खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला आप तक पहुंच रहा है। मास्टर्स 11 ओमपोरा की टीम 48 विकेट के नुकसान पे 163 रन बनाने हैं। और ये खूबसूरत और आकर्षक क्रिकेट, फेरोज और उनके साथ लाला, ये जोड़ी बीच मैदान में 48 पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर अच्छी गेंद आखिर की वापस खिला बॉलर की दिशा में, एक और डॉट गेंद, और वही जो चर्चा कर रहे थे आप, ओवर समाप्त हुआ। यहाँ 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और 5 ओवर में 48 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। और अब जाकर के इस मैच को जीतने के लिए 115 बनाने हैं और 90 गेंदों का आना बाकी। 150 needed of 90 balls. It's 48 at the moment. There's still 115 behind. And 90 balls, if they go 10 and over, if they go with the same pace, I think they will finish it early. If they carry on with the 9.60 and over, and if they go with the 9.60 and over, that means 10 overs, that will make it 90, and it will take only 15 or 16 overs around that to finish the game if they carry on with the 9.60 and over. But after the power play, I don't think it will be easy to go 9 and over. Let's see what kind of strategy Ompora has made for this game, as Lala is getting ready to face the likes of Munib Munaf. As Munib goes and bows to Lala, and Lala cuts this one, cut hard, but fielder is there, Furqan does well to send in that quick return, but can't prevent that run, can't prevent that single. It wasn't a single, it was a boundary. He saved 3 runs for his team. 49 for the loss of 1. 49 1 विकेट पे 6 ओवर मुनीब मुनाफ का इस्तेमाल गेंदबाजी में, ये परिवर्तन, और 49 रन बना लिया है। सामने होंगे फेरोज, जिन्होंने एक बेहतरीन पारी अब तक खेली है, हालांकि 35 पे नाबाद है, और 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया है इन 35 रनों में। एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, आकिब जा रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद उनसे पहले सीमा रेखा से बाहर। और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ, और इन परिस्थितियों में देखा जाए ये चौका होगा अथवा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 रन होने चाहिए। और शानदार और बेहतरीन क्रिकेट, और 1 रन और 50 1 विकेट के नुकसान पे 50 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। और दुर्भाग्य ओमपोरा के लिए, इस बार हल्के हाथों के साथ ऑफसाइड में खेल करके तेजी के साथ दौड़ पड़े, और यहाँ रन पूरा कर लिया। 1 रन और 51 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की गेंदबाजी हो रही है मास्टर्स 11 ओमपोरा को जीत के लिए। Partnership is 30 of 19 balls between Lala and Feroz, and it is 51 for the loss of 1. We are in over number 6. This is JK Sports Time, bringing you the live broadcast, and thanks to the beloved sponsors of JK Sports Time, it is Munib Munaf who's operating with the ball now. 3 balls down in this over. It's 51,
And that one goes flat. And that's all the way. 6 more. It's 57 for the loss of 1. Takes full toll of that one, half track. And he takes him on, and Feroz, he's a different kind of a batter. And he says, Munawar, you may wait a while. Don't talk too much about me. I'm a batter of my own style. I'm batting in my own paradise. And that 6 brought to you by Just Pukhara. It's 57 for 1. 57 और 1 विकेट के नुकसान पे मुनीम मनाफ अगले गेंद फेरोज के लिए उनकी ये गेंद उस पर ऑप्शन से काफी बाहर विकेट कीपर से चौक और यहाँ मिलेंगे 4 गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर और एक और वाइड का इशारा अंपायर का और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए और इन परिस्थिति में खूबसूरत और बेहतर क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है और यहाँ क्या ये चौका था हालांकि वाइड अंपायर का निर्णय और गेंद उसके बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई थी अथवा नहीं ये देखना होगा और इन परिस्थिति में फेरोज सामने रहेंगे और रन संख्या की बात करें तो रन संख्या 57 1 विकेट के नुकसान पे फेरोज है सामने और 4 रनों का निर्णय और 5 वाइड्स यहाँ खाते में जोड़ते हुए मास्टर्स 11 ओम पर आके 5 रन और And that means it's 62 on the board for the loss of 1. And there is a kind of a communication gap between umpires, the officials and the players. And given us 5 wides, 62 on the board, and Ompora need 101 more runs to win the game and to become the 4th semi-finalist team of the tournament. Yes, umpire now signaling that 4 wides. And Lala is in the middle, and Lala, he is looking concerned at the moment. He's conveying a message each and every ball there. 62 for the loss of 1. 5 wide cities. 4 balls gone for 14. Here he is again. There is no slip in place. As he goes and bows to Feroz, and Feroz cuts hard. Find his Furqan in place. Not 4 runs. 62 for 1. 101 more runs needed. 101 more needed. Oh, that is swamped. 62 for 1. Last ball of 6th over. That is going to be the last ball off the power play. Here he goes again to Feroz, and Feroz swings hard. We'll get a boundary for that. That's 4. And with that boundary, they finish the power play on 66 for the loss of 1. 6 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले समाप्त 5 अतिरिक्त और पावर प्ले में मास्टर्स 11 ओम पर ने 66 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे और अब जीत के लिए यहाँ 97 रन बनाने बचे हुए 14 ओवर से 66 for the loss of 1. Now they require below 100. They need 97 more runs. Yes, आपने सही कहा. Absolutely right. Well, thank you, Mansoor, for joining in. And it is 66 for the loss of 1 after 6 overs. They're going 6-11 and over. 66 after 6 overs. 14 overs remaining. 84 balls. 97 more runs needed to win this one. And Imtiaz Malai is having a word with Kashyap sir there, and he's telling Kashyap that we are respecting the norms of the game, but you should also tell the opponent side to behave properly. But at the moment, it's 66 for the loss of 1 after 6 overs. Over number 7 is about to start. Mandatory power play. Restrictions are absolutely gone. Now it's going to be testing time for Lala and Feroz. How they will bat now, as it is 20 minutes past 3 here, and it is the time by my watch at the moment. Well then, Husab to bowl. Husab will be bowling from forehand. He looks a pacer. Yeah, he is a pacer. He's gonna bowl to Lala and his partner on the other end, that is Feroz. Feroz and Lala in the middle. Target is 163. They are 66. Still 97 behind. What could be the magical figure to touch? And this is quarter-final number 4. Tomorrow we have 2 semi-finals coming up. And the 4th semi-finalist team will be the one out of these 2. The one who wins this will make it to the club of 4. We have 3 already there. The 4th one to join them. And we'll complete that. Tomorrow we will have 2 semi-finals. 66 for 1. Wide up the off. Starts off with a wide delivery, but he gets away with that one. I think he shuffled across. He bowled wide up the off, but he shuffled across. That's the reason. Not given.
So good decision from umpire. 66 for 1. This is over number 7 we are in. बिल्कुल 7वें ओवर का खेल अब यहाँ शुरू, जिसमें हुसैब गेंदबाजी करने के लिए यानी कि नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, और ऐसे में लाला मैदान के अंदर और फेरोज अच्छी बल्लेबाजी करें। अगर फेरोज की बात करें तो उन्होंने 46 रन अब तक बनाए, 25 गेंदों का सामना किया। कि लाला तो कुछ खामोश दिखाई दे रहे। लाला ने अब तक 7 रन बनाए, 7 गेंदों का अब तक सामना किया। और बिल्कुल, और बड़ी बात यह कि यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया टीम के कप्तान ने, क्योंकि थोड़ा सा दबाव और प्रेशर आया गेंदबाजों के ऊपर। विकेट हासिल करना होगा इस दबाव से, और बाहर आने के लिए यहाँ टीम और एलिगेंट स्ट्राइकर्स को, अगर उन्हें इस क्वार्टर मैच को अपने नाम करना, एक बार फिर ऑफ स्टंप के काफ़ी बार फिर से बीट हुए वहाँ ऊंचे लंबे कदावर बल्लेबाज लाला है। कि लाला को लगातार यहाँ बीट कर दिया, और गेंदबाज हुसैब ने, यानी कि हुसैब अपना पहला ओवर कर रहे हैं। प्रेशर और दबाव और बढ़ेगा अगर यहाँ से आप डॉट पर खिलाओगे, और अचानक अगर 1-2 विकेट जल्द आपने हासिल किए तो मास्टर 11 ओमपुरा के ऊपर दबाव बनेगा। हालांकि इसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका अभी आना बाकी है। हालांकि जो गेंदबाज इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी, एक अच्छा टप्पा है, उससे ही लाइन पर गेंदबाजी करे। यहाँ कट किया गेंद को, कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। There is addition in score. 68 for the loss of 1 wicket that were brought to you by Just Bukhara. 70 on the board now, and they are still how many runs behind? They are 93, I think. 93 more runs needed from remaining number of balls, and the 70 on the board. 93 away. And talking of required rate, it is 6.97, shade below 7 and over. I think now they're looking forward with some intent. Here is that young bowler again. He goes back and pulls it away. Doesn't middle. Lala could only manage a single for that. And he's sticking himself. He's disgusted with himself. One more run added. Imtiaz Malla is there to back their boys. 71. He's looking energetic beyond the boundary line. 45 young. A lot of things are going on. 71 for 1. Imtiaz left in. Fazil having some words there and having some fun, cutting jokes. Hussain ball tight over, just 5 of it. 71 after 7 for the loss amount. 163 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए यहाँ टीम मास्टर 11 ओमपुरा को। रामपुरा बड़ी अच्छी कमाल की बल्लेबाजी करी, यानी 71 और 1 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। यानी कि दानिश हिलाल एक ऐसे वाहिद बल्लेबाज हैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स में जिन्होंने 70 रनों की एक अच्छी बेहतरीन पारी खेले। पर तारीफ करनी होगी आज यहाँ मास्टर 11 ओमपुरा के गेंदबाजों की, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि डेथ ओवर में, और न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी की बल्कि विकेट्स हासिल करके यहाँ कम रन खर्च के पिछले कुछ 3-4 ओवर्स में, उसका अच्छा फ़ायदा यहाँ मिलेगा मास्टर 11 ओमपुरा के बल्लेबाजों को। अब नए गेंदबाज यानी कि मुनीब मुनाफ लगातार मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला CRPF कप 2024 का 7.08 के औसत से टीम को रन बनाने, यानी कि 10.14 के औसत से टीम रन बना रहे। हुसैब ने और 1 ओवर में 5 रन खर्च किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता, अच्छा ओवर गया, ज़्यादा रन तो खर्च नहीं किए। 71 और 1 विकेट के नुकसान के बाद, जी हाँ, और 7 ओवर की इख्तितामी के बाद अब नए गेंदबाज और गेंदबाजी करने के लिए मुनीब मुनाफ विकेट कीपर और थर्ड मैन है। बैकवर्ड पॉइंट और कवर और मिड ऑफ दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है। तो इस तरह से इस ओवर में पहली मरतबा वो गेंद करेंगे और दाएं हाथ के बल्लेबाज को, दाएं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि इस बार पैड लाइन पर आते हुए गेंद को, हालांकि अच्छी लाइन वहां गेंदबाज मुनीब मुनाफ की गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेला। खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिला, 1-1 रन से यहां लगातार पारी को आगे ले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, यानी कि एक अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट पर निभाई लाला और उनके साथ फिरोज ने। हालांकि फिरोज अपनी निस्फ सेंचुरी से यानी कि 4 रन दूर और सामना करेंगे लाला इस ओवर के अगले गेंद का। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, हालांकि फिरोज स्ट्राइक पर नजर आ, जी हाँ, फिरोज स्ट्राइक पे हैं और कुल मिलाकर डॉट गेंद का एक मरतबा फिर सामना करना पड़ा। मुनीब मुनाफ अपना दूसरा ओवर 1 ओवर की गेंदबाजी, इससे पहले जो ओवर किया था वहां और गेंदबाज ने तब जाकर उन्हें और 18 रन खर्च किए, यानी कि 18 रन खर्च किए थे। और अब अगर बात करेंगे तो इस ओवर में अच्छी वापसी रही यहाँ गेंदबाज की, जिसमें
2 गेंद में अब तक उनने 1 ही रन खर्च किया इस ओवर में। हालांकि अगली मर्तबा डाउन द ट्रैक आकर गेंद को खेला, गेंद मिड विकेट की ओर गई है और 1 रन और टीम के खाते में। न सिर्फ यहाँ से अब जाकर डॉट पर खिलाना होगा, विकेट हासिल करना होगा, इस साझेदारी को तोड़ना होगा और टीम और एलिगेंट स्ट्राइकर्स को अगर उन्हें इस मैच में वापस आना, क्योंकि इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, जितना समय और वक्त यहाँ मिलेगा खेलने का और बल्लेबाजों को खासकर फिरोज और लाला को तो भरपूर फायदा लेकर ही बाद में मैदान छोड़कर वापस जाओ। अलग बात है कि फिलहाल तो अच्छा फायदा मिल रहा है यहाँ टीम को, क्योंकि सेट हैं फिरोज और उनके साथ लाला सामना करेंगे इस ओवर के अब अगली गेंद का। इस बार भी अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद को कलाइयों के सारे गेंद मिड विकेट की जानिब गई। 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ अब यहाँ कुल मिलाकर 7.4 ओवर की गेंदबाजी में 74, 1 विकेट के नुकसान पे। 74 for the loss of 1. This is over number 8 we are in. They were going 10 and over or more than that. 10.50 and over. And this is 8th over in progress. It's a 20 over game. After this 12 overs remaining. Little back away down the leg side he goes. Wide it again. That one added to the tally. 75. He created room. And he still bowled there. I think he was trying to follow him. Is it Mansoor? He was trying to follow him because he was making room. And one more run added to the tally. 75 for the loss of 1 over number 8 in progress. बिल्कुल यह पारी का 8वां ओवर जारी है। 7.1 ओवर, हालांकि 4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है और एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा फिरोज के लिए, फिरोज सामना करने की तैयारी में गेंद को खेला पर पीछे खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री लाइन के नजदीक। 1 रन और टीम के खाते में, यानी कि 48 पर फिरोज नाबाद है। 29 गेंदों का सामना किया और 2 रन अपनी अर्धशतक से दूर, यानी कि एक अच्छी पारी खेली। सेट बैट्समैन है तो और एक अच्छी शुरुआत मिली, जिसे हम ठोस शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि पहला झटका जब लगा टीम को तो तब ज्यादा स्कोर नहीं बनाया था यहाँ टीम मास्टर 11 ओमपुरा के। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी लाला और उसके साथ साथ फिरोज के दरमियान, यानी कि लाला सामना करेंगे इस बार। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, वापस धकेला और फॉलो थ्रू में जाकर मुनीब मुनाफ ने गेंद को फील्ड किया। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, यानी कि डॉट गेंद के साथ अब 8 ओवर कंप्लीट, यानी कि 8 ओवर के इख्तिताम के बाद 76, 1 विकेट के नुकसान पे और 72 गेंदें अभी भी आने बाकी, यानी कि 9.50 के औसत से टीम रन बना रही है। 7.25 के औसत से रन बनाने टीम को, हालांकि आस्किंग रेट का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है और सिंगल डबल से अगर काम चलाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ यहां और मास्टर 11 ओमपुरा की टीम सेमीफाइनल में जा सकती है, यानी कि उन्हें मौका ये मैच जीतने का। यहां से मैं ये कहूंगा, अगर आपके पास, हालांकि जो इस वक्त मैदान के अंदर एलिगेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजी कर रहे हैं, वो दबाव में है, वो प्रेशर में है और उस प्रेशर से, उस दबाव से उन्हें यहां लाला का विकेट हासिल करना होगा। लाला उतने खतरनाक आज नजर नहीं आ रहे कि जितने खतरनाक मुझे फिरोज नजर आ रहे, यानी कि फिरोज का विकेट उन्हें हासिल करना होगा। किसी न किसी बल्लेबाज का विकेट हासिल करने से वो जो दबाव है, उस दबाव से टीम बाहर आ सकती है। 76 for the loss of 1 after 8 overs. 12 overs, 72 balls remaining. And who's gonna bowl? The Munib Munaf ball 2 overs, none for 23. And after 2 overs, he's gone for 23. Munib Munaf, and it's going to be newcomer to bowl, who bowled that. I think he has already bowled 1 over. That was tight over. Feroz on strike. On to 48 now. He bowled it wide of the off. Wide signal from umpire. और बिल्कुल जो आपने कहा सही कहा आपने, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर लगातार जो आप गेंदबाजी कर रहे हो, ये खराब गेंदबाजी हो रही है और गेंदबाज की जानिब से हालांकि अपनी गेंदबाजी में कंट्रोल रखना होगा वहां गेंदबाज को, क्योंकि टप्पा खाने के बाद लगातार जो ऑफ स्टंप छोड़कर गेंदें जा रही है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ गेंदबाज को, यानी कि एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन और टीम के खाते में। नए गेंदबाज हुसैब जो अपना दूसरा ओवर लेकर, इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें 6 रन खर्च के, इस बार बैक ऑफ द हैंड यानी कि स्लोअर वन का इस्तेमाल किया। चेंज ऑफ पेस खेलना चाहते थे, बीटे हुए और गेंदबाज सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। Dot ball here, 77 for the loss of 1. 9th over in progress. It's 3:30 here. Is he smiling? Why not? 77 for the loss of 1. This is over number 9 in progress. As we watch once again, Husab to continue. Husab comes on to bowl the next one. He's in his second over, 1.1, none for 6. Bowl really well. Husab to bowl. On strike is Feroz. And oh, this could be! Oh, he gets away with that one. It falls in the no man's land and Mansoor Butt says no way. 78 for 1. This is over number 9 we're in. It was in the air for a while. अब 78 यानी कि
एक विकेट के नुकसान पे 8.2 के बाद धीरे धीरे अब दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दबाव और प्रेशर से बाहर आने के लिए हालांकि हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन करना अब तक कोई रंग नहीं लाया टीम के लिए, जहां एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम मैदान के अंदर 4-5 गेंदबाज लेकर मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहा है कि वो जो विकेट मिला था उस चीज से कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं बढ़ा मास्टर 11 ओमपुरा के बल्लेबाजों के ऊपर। इस ओवर में अगले मरतबा इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद यहाँ और फ्रंट फुट पर आकर गेंद को मिड ऑफ की जानिब खेला। ये देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि दबाव तो आप साफ जाहिर और नजर आ रहा है यहाँ खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि वहां एक ही रन बनाने का मौका था, जैसे ही हल्का सा मिसफील्ड हुआ और यहाँ पलटकर दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने, यानी कि 2 रन एक नहीं बल्कि 2 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड में अब 2 रनों का और इजाफा। 80 एक विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। लगातार यहाँ 9.41 के औसत से टीम रन बना, हालांकि जो दरकार औसत है वो 7.22 की है। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल था और पीछा किया था वहां इस गेंद का लाला ने, पर गेंद और बैट का एक बार फिर कोई मुलाकात नहीं और गेंद सीधे रहती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। 80 for the loss of 1. 9th over in progress. 8.4 done. It's 9th over in progress and the first ball of the 9th over. He banged it in short and Lala shaping for that pull shot, doesn't connect. Tomorrow 2 semi-finals coming up. And next one, this one he gets in possession and sends it all the way for 6. And it will take us some time to bring the ball back, but that is just Bukora maximum 86 for 1. This time he was in position inside the line of the ball and he banged it in short. He puts him away in style. Huge 6 onto the roadside. 9th over in progress and asking rate again comes down to 6.90, but the current rate improved with that big shot. बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि एक लंबा जो छक्का लगा उससे जो दरकार औसत है वो कम अब नज़र आ रही है, क्योंकि लेग स्टंप के आसपास हालांकि जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉडी अटैक कर रहे हैं, सीने की ऊंचाई के बराबर आई गेंद और कद तो ठीक ठाक है बैट्समैन लाला का, और कद का यही फायदा रहता है। एक बड़ा छक्का लगाया और लाला ने ये ओवर भी अब जाकर खर्चीला गया वहां गेंदबाजी की, इससे पहले अच्छा ओवर आया था और हुसैब का, पर इस ओवर में उन्हें खराब गेंदबाजी की, यानी कि इस ओवर की बात करेंगे तो अब तक उन्हें 10 रन खर्च के, कुल मिलाकर 86 एक विकेट के नुकसान पे 8.5 के बाद अंतिम गेंद आनी बाकी है और इसके बाद भी काफी सारे ओवर्स यानी कि काफी सारी गेंदें आने बाकी। इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को। जी हां, आपने कहा पर सीधे बल्ले से खेला, उस और खिलाड़ी तैनात है, देखना होगा रोक पाएंगे। जी हां, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अंतिम गेंद पर रन पूरा करके यहां स्ट्राइक अपने पास रखी लाला ने। लाला का स्कोर 23-17 गेंदों का सामना किया, 87 एक विकेट के नुकसान पे। 87 after 9 overs for the loss of 1. They're chasing 163. That means they're still 76 runs behind. And what could be the magical figure to touch after 9 overs, 87. But this is the beauty of T20 cricket. First 6 overs, if you score at the rate of 9, 10 an over or 11 an over, but when it comes to the overs from 7 till 20, you need extraordinary effort. They were going, we call that balle balle, and now somehow they were scoring 10.50 an over. Now it's down to 9.67 an over. देखिए आकिब का एक बार फिर इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, न जाने क्या सोचकर आकिब का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले आकिब का वो जो ओवर रहा था वो काफ़ी खर्चीला रहा था। दूसरी बात है कि आपके पास 4-5 गेंदबाज है, आपको तो उन्हीं गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह से पार्ट टाइमर किसी गेंदबाज का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो मुझे लग रहा है कि खासकर इस बैटिंग विकेट पे वो बड़ा जोखिम होगा, तो यकीनी तौर पर आकिब का ही इस्तेमाल करना था। पर यहाँ से देखना होगा क्या वो वापसी कर पाएंगे, वापस धकेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गेंदबाज आकिब ने। इससे पहले हालांकि 2 ओवर 16 रन और 1 सफलता हासिल किया आकिब ने। वो जो विकेट गवाया था वो आकिब के खाते में गया और आकिब ने वो विकेट हासिल किया। यहां हवाई रास्ते खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं पर कोई मौका नहीं, 2 खिलाड़ियों को वहां और गेंद छकाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। With that boundary, there is addition in score. Score propelled to 91 for the loss of a wicket. This is 10th over in progress as we watch. Next one is coming up and it's 91 for the loss of 1. 10th over in progress. Akib batting. Akib in his 3rd over, he's gone for 20. Lala 27 and Feroz 49 of 31. That's a big shot. That is huge. 6 of the bat of Lala. Just Bukora maximum 97
on the board, and Aqib Hamid taken on, and he decided to go after Aqib now, and Lala moves to 33 of 20 balls, and Master 11 Ompora are 97. They are 66 runs behind. What could be the magical figure and a destiny, because the real destiny in this match is 163, and if they get there, they are into the semi-finals of the tournament. 97 at the moment, just 66 runs behind. 10th over in progress as we watch. Aqib is bowling. Munib having a word with Aqib. I think he's telling him try to pitch it away from his arc. He's going little cross and is taking you on, so try to bowl it wide of the off. Let him reach out to the ball. Here he goes again, hop track again, pulls this one. There is fielder, there is production, and fielder does well to stop the ball, and Lala unable to execute that one. Nonetheless picked up a single, 98 for 1. Now they are 65 runs behind, and it's 20 minutes to 4 now by my watch. Here is Feroz, and that's gone all the way. It's out up here onto the road. 6 more, and that brings up 50 for Feroz. 66 up his innings, 55 unbeaten of 32 balls. Just Bukhara maximum coming, and this server will spoil everything here. 59 more runs away to win this one and to become the 4th semi-finalist team of the tournament. And Aqib Hamid gone for 33 of his 2.5. Feroz 55, Lala 34, and this is over number 10 we are in. 104 पे 1, 9.5 ओवर की गेंदबाजी, और इस ओवर में क्या विस्फोट किया है लाला और फेरोज ने। फेरोज इस समय 55 पे नाबाद है 32 गेंदों से, लाला 34 21 गेंदों से 104 1 विकेट के नुकसान पे 9.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आकिब हमीद जो कि इस समय कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फेरोज है सामने, अगली गेंद फेरोज के लिए, और इस बार फेरोज ने सम्मानजनक रूप से खेला। ऑफ साइड में गेंद चली गई, अंतिम समय में बल्ले को तिरछा किया, रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 10 ओवर पूरे 162 के जवाब में 104 रन बना लिए हैं, और अब जीत के लिए 60 गेंदों से 59 रन बना रहे हैं। मुश्किल नहीं आती। 59 needed of 60 balls, number of balls 60, number of overs 10, number of runs they require 59, and it is 40 minutes past 3, 20 minutes to 4 o'clock, and it's 104 for the loss of a wicket after 10 overs. The remaining 10 overs, what is in store, how things will progress and how things will unfold, how the innings will go forward. At the moment it's Master 11 Ompora, but in inning number 1 we saw that to majority of the inning number 1, to major part of inning number 1, in majority of overs it was a team Elegant Strikers who were on top, but in middle overs it was a kind of a mix up. The bowlers chipped in with wickets, batters tried some big shots. In that process they lost the way, and at one stage it looked like they will finish around 220. In the end finished on 162, and 163 is what Master 11 Ompora are looking for. They are now 59 away. This partnership is taking game away. Need to get rid of the partnership. Munib Munaf and rest of the boys need to understand that there is urgency of a wicket. Wicket or a 2 will definitely even it up and will make it evenly poised competition between two teams. But anything loosener will be punished in style, and that's gone for 4. That was brought to you by Just Bukhara. And with that boundary there is an addition in score, 108 now. They are now 59. That means they are 108. They are 65 around. Yeah, they need just 65 more runs to win the game. बिल्कुल, लाला तो लगातार मैदान के अंदर प्रहार कर रहे हैं, और दूसरे जो साथी बल्लेबाज ने भी अपनी और अर्धशतकीय पारी खेली है, और लाला बेहतरीन बल्लेबाजी करके लगातार आप जाकर ये जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, उसे बरकरार रखा। गेंदबाजों के ऊपर वो दबाव, वो प्रेशर एक बार फिर यहाँ दिखाई दे रहा है गेंदबाज मुनीब मुनाफ के ऊपर, क्योंकि पहली गेंद पर चौका लगा, दूसरी गेंद जरूर डाट हुई है, 4 गेंदें आने बाकी, यानी कि 55 रन बनाने जीत के लिए 58 गेंदों का आना बाकी, और गेंदों और रनों में अब ज्यादा अंतर या फर्क नजर नहीं आ रहा। 108 रन 1 विकेट के नुकसान, अच्छी साझेदारी, बेहतरीन साझेदारी निभाई
लगाई दूसरी विकेट पर, यहां सीधे बल्ले से खेला, कोई मौका नहीं है और गेंद एक बार फिर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि एक और चौका लगा यहां जस्ट बुखारा। मागाम का 8 रन अब तक का, इस ओवर से 3 गेंदें इस ओवर की मुकम्मल हो चुके, यानी कि 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी। 112 एक विकेट के नुकसान पे 51 रनों की दरकार है अब ये समय, हालांकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए मास्टर 11 ओमपुरा को। 57 balls, 51 needed. Here is the next one. Lala on to 42. Change of pace. Slower. Takes it on the full. Down to the backward of square fence for 4. Now they need just 47 more runs. With that boundary score propelled to 116 this over. This over 3 चौके 4.44. And it means 12 of 4 balls here. 116 of 47 away from 56 balls. And if Lala stays there, I don't think Ompura will take too much time to finish it up and to wrap it up. Here is the next one. Where is this one going? This one is going nowhere. Into the safe hands of wicket keeper. It's 1-1-6 for 1. बीट हुए वहां बैट्समैन, यानी कि लाला मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। कुल मिलाकर अब ज्यादा रनों की दरकार नहीं है, 47 रन बनाने जीत के लिए, तो यहां से आप जाकर जीत बड़ी आसान लग रही है। जितना मैच आसान बड़ा लग रहा है टीम मास्टर 11 ओमपुरा के, क्योंकि ओमपुरा के और 5 हालांकि 7 बल्लेबाजों की अगर बात करेंगे जिनका अभी आना बाकी, इम्तियाज मल्ला या तास खान की बात करेंगे, जाहिद डार की बात करेंगे, मुनी मुनाफ अगली मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, निकाला गेंद को, पीछे खिलाड़ी है, कोई मौका नहीं है, एक और चौका लगा, यानी कि लगातार 4 चौके लगे इस ओवर में। 16 रन खर्च किए मुनी मुनाफ ने और कुल मिलाकर 3 ओवर और 39 रन खर्च किए, यानी कि 50 रन पूरे हुए लाला के। और क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन अर्धशतक लाला ने मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए ऐसे समय में, ऐसे बड़े मुकाबले में जहां आवश्यकता थी, और वो एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। साथ में फिरोज ने भी बहुत ही बेहतरीन विस्फोट किया। प्रारंभ में 120 पे 1, 43 चाहिए 54 के 2 ओवर। यहां कोई और गलत स्ट्रोक आज नहीं खेला बैट्समैन लाला ने या फिरोज ने, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये नॉकआउट मैच है, तो नॉकआउट मैच सारे मैचेस फाइनल तक फाइनल ही और होते हैं और या फाइनल समझकर ही खेलने होते हैं। तो वही कि आज फिरोज ने कोई जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं लिया, लाला ने कोई गलत स्ट्रोक नहीं खेला। 50-50 पर दोनों बल्लेबाज नाबाद इस वक्त मैदान के अंदर डटे हुए हैं। 27 गेंदों का सामना किया लाला ने या 33 गेंदों का सामना किया फिरोज ने। 120 रन तक पहुंचाया टीम का स्कोर, यानी कि 163 रन बनाने कुल मिलाकर यहां जीत के लिए। अब 43 रन बनाने और गेंदें काफी आनी बाकी है। आजान का समय हो रहा है, लौटेंगे आजान के समय के बाद। बन जाता है।
आजान के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और ऐसे में रन संख्या की बात करें तो 1 रन और पलटकर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। और अब जीत के लिए यहाँ से 33 की आवश्यकता और 2 रन और जी हाँ 48 गेंदें बची। ओवर समाप्त हुआ, 48 गेंदों से 31 रन बनाने हैं। 132 पे 1 यह है मास्टर्स 11 ओमपोरा का कुल शौक। 12 ओवर की समाप्ति के बाद दर क्या बल्लेबाजी लाला ने की है। वो इस समय 55 पे नाबाद है और उनके साथ फेरोज ने 62 रन बनाए हैं। तो 2 अर्धशतक अब तक इस पारी में लग चुके हैं। हालांकि शुरुआत में विकेट मिला और उसके बाद जिस प्रकार की बल्लेबाजी, नाबाद साझेदारी, ये दूसरे विकेट के लिए बेहतरीन आकर्षक क्रिकेट और निश्चित तौर पर धीरे धीरे से अब जीत की और अग्रसर यहाँ मास्टर्स 11 ओमपोरा की टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बाद 31 चाहिए, 48 के दुकान बाकी। लाला हो गए सामने, बिल्कुल सामने वाले छोर से नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और ये पारी का 13वां ओवर और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि फाजिल रशीद ने 3 ओवर में 29 रन खर्चे, उन्हें विकेट नहीं मिला। लाला है सामने जो कि 55 पे नाबाद अगली गेंद का सामना करने के लिए। 48 गेंदों से 31 की आवश्यकता। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के 31 चाहिए 48 गेंदों से। ये गेंद और इस बार यहाँ लाला ने उड़ाया, लाला का बोलबाला गेंद को सीमा रेखा से बाहर निकाला, जस्ट बोखारा छक्का। 25 चाहिए 47 गेंदों से। जहां अब ज्यादा रनों की दरकार नहीं है, हालांकि लाला और उसके साथ जो साथी बल्लेबाज हैं तो लगातार अच्छी बल्लेबाजी करके और यहां जीत तक लाया। हालांकि टीम को अब जीत से ज्यादा दूर नहीं है। 25 रन बनाने 47 गेंदों का सामना किया और कि पहली गेंद पर छक्का लगा और जहां और अथर गेंदबाजी करने के लिए। और अथर की बात करेंगे तो पहला ओवर करने के लिए, हालांकि पहले ओवर की पहली गेंद पर छक्का, 5 गेंदें आने बाकी, 138, 1 विकेट के नुकसान पे। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इस मैच को और इख्तिताम या मुकम्मल होने में, क्योंकि लाला और उसके साथ साथ जो फिरोज, उन्हें मालूम है कि गेंद भी ठीक तरह से बैट पर आ रही है, खराब गेंदबाजी और सेट बैट्समैन है, तो हर किसी गेंदबाज को आज यहाँ रन खर्च करने पड़े। यानी कि नए गेंदबाज को लाया था और उन्होंने भी पहली गेंद पर छक्का खाया। एक बार फिर वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया। सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का, यहाँ बैकफुट पर आकर गेंद को कवर की जानिब खेला, खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ यहाँ रन पूरा किया। 24 रन बनाने 46 गेंदों का नबाका। 1 रन और इन परिस्थितियों में अब 46 गेंदों से 24 की आवश्यकता। अरे क्या खूबसूरत और बेहतरीन बल्लेबाजी, आकर्षक बल्लेबाजी मास्टर्स 11 ओमपोरा के बल्लेबाजों द्वारा। मात्र 1 विकेट खोया है और रन संख्या 138। अगली गेंद इस बार फेरोज की पारी और गेंद मैदान से बाहर जा रही, हवाई यात्रा पे और एक और जस्ट बोखारा छक्का। 144 और अब 19 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए 40 गेंदों से। राउंड द विकेट जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया वहां गेंदबाज अथर ने, हालांकि ये फैसला भी सही साबित नहीं हुआ कि पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने यहाँ ओवर द विकेट के बजाय राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला, हालांकि इस चीज़ से भी कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं बढ़ा और बल्लेबाजों को, क्योंकि बल्लेबाज चाहे आप ओवर द विकेट गेंदबाजी करो, राउंड द विकेट गेंदबाजी करो, तो हर दिशा में हालांकि स्ट्रोक लेने की महारत रखने वाले बल्लेबाज जो मैदान के अंदर लगातार प्रहार कर रहे गेंदबाजों के ऊपर। एक और लगातार यहाँ इस ओवर में तीसरा और फिर से हवाई रास्ते मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है गेंद। 2 गेंदों से 2 छक्के और अब 12 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का प्रहार दोनों छोर से, चाहे वो लाला हो चाहे वो फिरोज हो, और क्या कमाल की बल्लेबाजी। और आज दर्शकों का मन मोह लिया है, मनोरंजन किया है दर्शकों का इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 दूसरे एडिशन का और चौथी टीम होगी मास्टर्स 11 ओमपोरा जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 12 चाहिए 44 के दुकान बाकी। अगली गेंद देकर के गेंदबाज चले और इस बार फिर फिरोज ने हालांकि खेलने का प्रयास जरूर किया था, अंदरूनी भाग लगा और 1 रन दौड़ पड़े कि
केवल 1 रन मिलेगा। वहां लाला रहेंगे सामने, 11 चाहिए जीत के लिए। 43 के दुकान बाके 152 रन बना लिए हैं, 163 रन बनाने हैं यहां से इस मैच को जीतने के लिए। ये दूसरी पारी, कल 2 सेमीफाइनल मुकाबले इसी वेन्यू पे खेले जाएंगे, वो लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। और 28 नवंबर को फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का। 11 की आवश्यकता अगली गेंद, इस बार डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, और इसमें रन बनने की संभावना थी नहीं। 42 से 11 की आवश्यकता, 7 ओवर का खेल बचा। 7 overs, 11 away to win this one. Look at the contribution. Feroz 75, Lala 62. Wicket apiece? No, just a wicket. And that's for Aqib Hamid. And the rest of the bowlers unsuccessful all. And still in search of a breakthrough. Just 11 away, 42 balls, 7 overs. Oh, 2 big shots. We'll see there. We'll see Ompora in the semi-finals of the tournament. This is season 2 and it's quarter-final number 4 on the way. Just 2 days remaining in the tournament. Tomorrow and day after tomorrow. It will culminate by 28th of November if Allah subhanahu wa ta'ala permit us, and if weather stays true as it is nowadays. It is a bit difficult to carry on with the cricketing activities knowing that it's shivering cold throughout the day, but over the past couple of minutes I think it has improved a little bit. Otherwise we were shivering throughout the day, but today we have everything in place. We have all the equipments in place. We have brought in everything that keeps we people warm. We have everything in store here today. It's 153, is it? Or more than that? It should be 154 now. In his 4th over, none for 39. Oh, just past to the stumpers. Well, he's lucky to survive. Just 10 away. 41. It's 40 balls now. 10 needed. Here is Mudi Munaf again. Now working as a leg spinner. Is it? Let's see how he's turning it. Yes, he's bowling like, to be fair, he's off spinner, but he's bowling like that. Sometimes he's trying to mix it up. Off spin and leg spin in between. He's mixing it up. Going with both the things. Now flight on off. This could be the end of Lala, but fielder need to hold on. And he holds on to that one. Lala departs. And Mudi Munaf gets his man. Now 39 balls and they are still 10 runs behind. And who's going to walk in now? In at number 4 as they are 2 down, and Lala is caught at short fine. Well, catch in the end. It was easy one. Easy peasy. To me, and he's gone. Newman walks in. Newman in at number 4. Who's going to walk in? But score is yet to update. I may remind you, tomorrow we have double header again coming up your words. That's going to be 2 semi-finals tomorrow. And the day after tomorrow, it's going to be the grand finale of the tournament coming up your way. But tomorrow we shall come to know who are going to be the 2 teams to lock horns on Thursday. You call it in Urdu and Hindi mix of Jumerat. It's like that. Is it? And coming back to the game and business, it's 1-5-3 for the loss of 2. 10 away. 2 big shots. We'll see. Ompora in the semi-finals. 3 out of 4 already there. 1 is to join them out of these 2. The winner of this game will join the club, will seek berth in the semi-finals. Here is Mudi Munaf again. 39 balls, 10 needed. It is Salimin. Oh, defensive shot. This is in day number 5, buddy. It's a T20 cricket. Defensive shot. It looked like that. He's playing a test match. Typical test match defensive shot there. Now fielder comes in at catching position, and 1 drops down to the boundary. Here is Munib again. Down the leg side. Little up, she works it away onto the onside. Feroz says just 1. That's it. And 1 run added. 9 away from winning this one. 9 रन चाहिए, 38 गेंदें बची है और अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि यहाँ ओवर समाप्त हुआ। जी हाँ, तो 36 गेंदों से ये रन बनाने हैं, क्योंकि मास्टर्स 11 ओमपुरा की अगर हम बात करें, लाला आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं दूसरे विकेट के रूप में, लेकिन बढ़िया पारी उन्होंने खेली, विस्फोटक पारी, जिसके दम पे यहाँ मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम जीत की कगार पर। और साथ में फेरोज, जिन्होंने क्या लाजवाब ताबड़तोड़ विस्फोटक और आकर्षक प्रदर्शन किया है। 36 गेंदें, यानी कि 6 ओवर में अब 9 रनों की आवश्यकता। इस मैच को 8 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदें, 8 रन चाहिए। 155 पे दो।
नए बैट्समैन जो आए मैदान की ओर, और सालिम वो सामना करने की तैयार में है कि फिरोज ने 76 रनों की नाबाद अभी भी मैदान के अंदर पारी खेली है, और लाला ने आज बेहतरीन पारी खेली, वो मैदान छोड़कर वापस गए, पर काम तो आज तमाम कर दिया लाला ने। सामना करेंगे इस ओवर के अब पहली गेंद का लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, लेकिन एक्स्ट्रा की सूरत में अब 1 रन और 7 रन बनाने हैं, और 36 गेंदों का अभी भी आना बाकी, यानी कि ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला था सीआरपीएफ कप 2024 का, और मास्टर 11 ओमपोरा की टीम चौथी टीम हालांकि बनेगी, हालांकि अभी भी थोड़ा सा यहाँ रनों की ज़रूरत है, तो चौथी टीम अब सामने आए, जिन्हें सेमीफाइनल में जाने का अवसर मिला। कल 2 सेमीफाइनल मैच, उसके बाद 28 तारीख को फाइनल मैच आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक और डॉट गेंद यानी कि 7 रनों की अभी भी ज़रूरत है, और बैट्समैन जो नए बैट्समैन आए सालिम वो सामना कर रहे हैं वहाँ, और गेंदबाज और हुमायूं गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपने कोटे का पहला ओवर है, लेकिन नई गेंदबाजों को लगातार अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा टीम के कप्तान ने, और गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को, वो सामना करने की तैयारी में। यहाँ पैडलाइन पर आते हुए गेंद उठाकर खेला, मैदान दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है, पर कोई मौका नहीं, और गेंद और बाउंड्री लाइन से बाहर गई। एक और चौका लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, इस चौके की मदद से आप जाकर यहाँ 3 रनों की जरूरत, और 34 गेंदें आने बाकी है। आखिरी 3 चाहिए, 34 गेंदें बची है। 160 पे 2, 162 पहली बारी में बने थे, 163 का विजयी लक्ष्य। वैली फ्रेश कोल्ड चेन, एमएलए जिमखाना और बटवारा स्पोर्ट्स क्लब, ये 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। चौथी टीम होगी यहाँ मास्टर्स 11 ओमपोरा, हालांकि 3 रन दूर अभी भी। 33 गेंदों से 3 रनों की आवश्यकता, और आखिरी औपचारिकताएं बची हैं, क्योंकि मुकाबला लगभग तय। और इन परिस्थिति में अगर बात करें तो बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेट आज लाला और उनके साथ फिरोज ने खेली, जिसके चलते यहाँ रन संख्या अब 162 तक पहुंचने जा रही है, वो लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं। लेग स्टंप पर लीजिए भैया, उपहार के रूप में एक और रन दीजिए, और अब 2 चाहिए जीत के लिए। 33 के दुकान बाकी है, और 161 2 विकेट के नुकसान पे 14.3 के बाद, यानी कि अब 2 रन जीत से दूर यहाँ टीम मास्टर 11 ओमपोरा, और मास्टर 11 ओमपोरा ने कभी भी यहाँ मैच में और कोई भी हालांकि गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो मैच में नहीं आने दिया। और एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को क्या ये विनिंग स्ट्रोक होगा, क्योंकि यहाँ 2 रन बनाने, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, यानी कि अभी भी 1 रन की ज़रूरत है। और यहाँ सालिम के बल्ले से ये रन आया जो 6 पर नाबाद है। फिरोज अब सामना करेंगे, अंतिम रन आने बाकी, यानी कि 32 गेंदें अभी भी आने बाकी है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और 1 रन देकर के विनिंग स्ट्रोक फिरोज के बल्ले से, क्योंकि अब उनका दायित्व भी है जिस प्रकार की उन्होंने पारी खेली है, और यहाँ से वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। चौथी टीम होगी, जी हाँ, उड़ाया सीमा रेखा से बाहर, चौथी टीम बनी मास्टर्स 11 ओमपोरा, जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। कल दोनों सेमीफाइनल मुकाबले अब तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल ये समय है आपसे विदा लेने का, दीजिएगा विदा, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।